ہمارے میزبان شورا کا مرحلہ یہاں پر ختم ہوا اور اب ہمارا دوسرا مرحلہ ہمارے مہمان شورا کا۔ اس میں سب سے پہلے ہم جس شاعر کو بلا رہے ہیں اس کو بلانے کا سبب یہ ہے کہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ دہشت کے زمانے میں ملائم چیزیں سب سے پہلے غائب ہو جاتی ہیں، تو ملائم چیزوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح پریشانی اور تکلیف کے زمانے میں سب سے پہلے جو چیز کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، وہ ہنسی ہے، اور ایسے وقت میں ہنسی کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں شدت پسندی سے بچاتی ہے۔ ایسے وقت میں جب ہنسنا مشکل ہو تو ظاہر ہے کہ اس شاعر کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے جو لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے۔ ہماری اردو شاعری میں بہت سے مزاح کہنے والے شاعر گزرے ہیں اور ان سب نے اپنا کچھ الگ انداز بنایا ہے۔ ہم جس شاعر کو مدعو کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک الگ انداز ہے اور اسی لیے ان کو حرف تراش کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں حروف کے استعمال پر خاص توجہ دی ہے اور ایک لفظ اور ایک حرف کے ہیر پھیر سے ان کے ہاں مزاح پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی زندگی، ہماری سماجی زندگی اور مزاح گو شورا کا جو ایک پسندیدہ موضوع ہے خواتین، ان سب پر ان کے ہاں شاعری ملتی ہے، جس میں کچھ طنز بھی ہوتا ہے، مزاح بھی ہوتا ہے، سن کر ہنسی بھی آتی ہے اور بعد میں آپ اس پر سوچتے بھی ہیں کہ یہ کس مسئلے کی طرف نشاندہی تھی۔ تو کچھ دیر کے لیے اپنے تمام مسائل کو بھول جائیے، تکالیف کو تھوڑا بھولنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو ہنسنے کے لیے آزاد چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ جب آپ ہنستے ہیں تو زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم ایک ایسے شاعر کو بلا رہے ہیں جو انڈیا، امریکہ، کینیڈا، بے شمار ممالک میں بار بار بلائے جاتے ہیں اور ان کی شاعری پر مسلسل قہقہے لگتے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں حیدر حسنین جلیسی صاحب۔ السلام علیکم۔ چند قطعات ہی پیش کروں گا، مگر اس سے پہلے یقین کریں سب سے پہلے تو میں تاشی صاحب جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مشاعرے میں مدعو کیا، اس لیے کہ تاج ہے شہیر صاحب، جس لیے کہ تاشی صاحب جب انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ امریکہ بلایا تھا 2015، پتہ نہیں کون سی بات ہے، ہاں اس وقت کی بات ہے، آج میں ان کی صدارت میں مشاعرے پڑھنے کے لیے داعش پہ حاضر ہوا ہوں تو میں فخر سے میرا سر بلند ہو رہا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو تاشی صاحب۔ چند قطعات پیش کروں گا دوستو، دو چار ہو سکتا ہے پرانے بھی آپ کے سنے ہوئے ہو جو، اور تازہ جتنا تازہ پڑھ سکتا ہوں وہ پیش کروں گا۔ چند قطعات اجازت ہے تاشی صاحب۔ پہلا قطعہ، یہ کووڈ کے بعد مشاعرہ ہو رہا ہے تو کووڈ کے دوران ایک قطعہ ہوا، اس کا عنوان تھا چھوٹی یہ بڑی یہ، وہ پابندی لگا دی تھی میاں بیوی بھی 5 فٹ 6 فٹ دور سے بات کریں، تو ہم دنوں مشکلات تھی تو اس پہ ہمیں چھوٹی یہ اور بڑی یہ کیا ہوتی ہے، چھوٹی دال بڑی دال نہیں ہوتی، چھوٹی رے بڑی رے نہیں ہوتی، ہم یہی سوچتے تھے چھوٹی یہ بڑی یہ کیوں ہوتی ہے اردو میں۔ تو یہ جب سمجھ میں آیا، توجہ کا طلبگار، کہ عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی، کووڈ کے زمانے میں اپنے آپ کو لے جائیں پہلے پھر بیگم دماغ میں لائیں۔ ہاں، عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی، اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی، مجھ میں اس میں فرق بس چھوٹی بڑی یہ کا رہا، میں پری کہتا رہا اور وہ
परी में छोटी है, परे में बड़ी है। मैं परी, ये किताब एक पुराना किताब पेश कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे बहुत खुशी होती है कि ये किताब मेरे ताशी भाई को बहुत पसंद आया था और उन्होंने एक आध जगह डाइस पे मेरा ये किताब पढ़ा भी मेरे लिए, वो पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, बेगम के इंतकाल के बाद ये किताब हुआ था जब तमाम शूरा बरादरी मेरे पीछे पड़ गई थी कि शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, तो उनको मंजूम जवाब दिया था। मैं वो पेश कर रहा हूँ। कमाल साहब अगर कोई बैठे हो और शेर ना समझते हो तो माजरत उनसे 2 मिनट के लिए कि कुछ दोस्तों, इस खिते का मौजू है कमाल। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रंडवे की जिंदगी है सरासर मलाल की, हामी भरी तो पिट गया मिस्टर कमाल से, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की, इतना कहा था। बहुत शुक्रिया। इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। उधर जरा देर से समझ में आ रहा है, मुझे बोले उतार के बैठो भाई। हाँ, पेश कर रहा हूँ कि कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रंडवे की जिंदगी है सरासर मलाल की, हामी भरी तो पिट गया मिस्टर कमाल से, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। दोस्तों, ऐसे ही एक लफ्ज है आश्कार, अक्सर इस्तेमाल होता है, फारसी लफ्ज है, अलिफ मद शीन काफ अलिफ रे, आश्कार, मुझे आश्कार करो, मुझे इंट्रोड्यूस करो, उजागर करो, नुमाया करो, इन मायने में ज्यादा आता है। तो ये लफ्ज पढ़ने में और बोलने में कोई मुश्किल नहीं है, मगर मुझ जैसे जाहिल आदमी से लिखते हुए कभी इसमें गैप आ जाए ना तो बड़ा जलील होना पड़ता है। वो पेश कर रहा हूँ। आश्कार का इमला और लफ्ज दिमाग में रखिएगा कि मैं तो जलील हो गया बैठा हूँ हार कर, मैं तो जलील हो गया बैठा हूँ हार कर, औरत से अब मिलूंगा मैं उर्दू संवार कर, मैं तो जलील हो गया बैठा हूँ हार कर, औरत से अब मिलूंगा मैं उर्दू संवार कर, उसने लिखा था खत में मुझे आश्कार कर, मैं समझा लिख रही है मुझे आ शिकार कर, मैं समझा। आप भी पढ़ के देखिएगा, कभी कभी आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मुझसे गलती हुई है। हाँ, ये उर्दू बड़ी टिपिकल और बड़ी वास्ट लैंग्वेज है। एक दोस्तों से मोटी मोटी तालियां और आवाज़ों से तो दाद आ रही है, वो पतली पतली आवाज़ों से जो दाद आती है ना, अभी तक नहीं आई है। हाँ, इसीलिए मैं अपनी तमाम बहनों से एक बात बता रहा हूँ सिर्फ इस खिते के लिए कि मुझे कोई मर्द इस खिते पे दाद नहीं देगा, हालांकि मेरा पुराना खिता है, मगर कोई नहीं देगा क्योंकि इसमें मुझ समेत मर्दों की असल खसलत बयान की है। हाँ, तो उस पर यह दलदला जो आया था उन दिनों में खिता हुआ था, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है हम कलम उठा देते हैं। तो पाकिस्तान में जो दलदला आया, ज़मीन फटी और हज़ारों अमवात हुई थी, उस वक्त हमारे एक दोस्त की भी शादी हुई थी, ऑफिस का दोस्त था, वो वहाँ शादी करने के लिए हिल एरियाज में गया था। तो फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला, फजलू की शादी के, वो वाला फजलू नहीं है यार, मुझे जेल नहीं जाना है यहाँ। फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला, उसकी बीवी मर गई, क्या गम वो ये सह पाएगा, हमने फिर शादी करा दी उसकी, अब कहता है वो कब के 10 दिन हो चुके, फिर जलजला कब आएगा, कब के 10 दिन हो चुके, फिर जलजला कब आएगा, कब के 10 दिन। अब बिल्कुल ताज़ा खिता पेश कर रहा हूँ, अभी तक
यहाँ अभी जो आलना वाले मुशायरे हो रहे हैं उनमें जहाँ जहाँ गया वहाँ शायद कहीं किसी एक आदमी पढ़ दिया। बिल्कुल ताज़ा पिता है कि आजकल मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम खुश होते हैं कि उर्दू अदब में जवानों की तादाद तेज़ी से आ रही है, मगर अब कुछ सिलसिला ऐसा है कि कुछ नौजवान हमारी तरफ कराची में बिल्कुल नौजवान नौउम्र लड़के हैं और वो उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है और गलती भी अदा करते हैं और फिर भी उस्ताद अपने आप को समझते हैं। तो उस पे एक किताब हुआ था, वो पेश कर रहा हूँ, तवज्जो का तलबगार, इसका उन्वान है उस्ताद। कि शायरी में अब तो लौंडे बन गए उस्ताद खुद। काशी भाई शायरी में अब तो लौंडे बन गए उस्ताद खुद, इनमें से कल एक लौंडा मुझसे खुद मिलने लगा, उसकी उर्दू कैसी थी अब क्या बताऊं आपको, मैंने जाहिल जब कहा तो जाके वो हिलने लगा। ये मिज़ा में लेके बात करते हैं, मगर ये मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ बच्चों का बहुत दिमाग इस वक्त, सीनियर्स की भी कोई इज्जत नहीं करते। हाँ, हमारे सामने सिगरेटों के धुएं निकालते रहते हैं। खैर, हाँ पेश कर रहा हूँ हुक्म आपका के शायरी में अब तो लौंडे बन गए उस्ताद खुद, इनमें से कल एक लौंडा मुझसे खुद मिलने लगा, उसकी उर्दू कैसी थी अब क्या बताऊं आपको, मैंने जाहिल जब कहा तो जाके वो हिलने लगा, मैंने जाहिल जब। एक पिता अभी तक कहीं भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ताज़ा ये शहीद भाई के मुशायरे में आपके पास लाया हूँ। सिर्फ तवज्जो का तलबगार अगर समझ में आ गया ना तो आप बहुत इंजॉय करोगे। इसलिए सर सैयद ने जो हमें दर्स दिया था कि अच्छे से अच्छी जितनी ज़बानें हो सकती हैं, स्पेशली इंग्लिश, इसको सीखो वरना बहुत पीछे रह जाओगे। आज उसका ये सिला है कि आप लोग यहाँ बैठे और अपनी तालीम याफ्ता अपने औलादों को भी तालीम दिलवा रहे हैं। खैर, मैं ये इस खिते को मैं ग्रैंड फादर कहता हूँ कभी कभी अपने ही इस खिते को, क्योंकि अमेरिका में और इंग्लैंड में जब भी जाना होता है हमारा, वो यूके में THE उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, अमेरिका में अलग है। वहाँ हमने अब तक THE दा कहते हुए सुना है, THE दा। अमेरिका में जब हम आते हैं तो यहाँ THE को ज्यादातर लोग दा की जगह दी इस्तेमाल करते हैं, THE दी। हाँ, तो इसको मैंने बहरहाल मंजूर करने की कोशिश की है कि पहले जैसा अब नहीं इंग्लिश में दादा का चलन, समझ गया ना, इसीलिए वो दादा आ गया तो ग्रैंडफादर लगता है। हाँ, अतीफत पेश कर रहा हूँ कि पहले जैसा अब नहीं इंग्लिश में दादा का चलन, बदला बदला अब तलफ्फुज़ हर नगर हर घर में है, कोई दा कहता है THE को और अब कोई दी, यानी अंग्रेजी ज़बान दादी के अब चक्कर में है, यानी अंग्रेजी ज़बान दादी के अब चक्कर में है। और एक उर्दू के और किताब सुन ले, ये बला की आलिमा, मैं इसको कहता हूँ, उम्र कुछ भी है, PhD कर लिया है, और उर्दू के जिसे कहना चाहिए लफ्ज 10 तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भी कोई चीज़ पूछनी होती मैं इनसे पूछता हूँ, सच्ची बात है। तो हाँ, उम्र से कुछ नहीं होता, अपनी इल्मियत से होता है। इन्हें एक मेरा किताब पसंद है, वो मैं पेश कर रहा हूँ। आप लोग कैच कीजिएगा तो समझ में आएगा, वरना नहीं। आजकल बच्चे, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे 20 अल्फाज उर्दू के नहीं समझते। किसी दिन बात की मैंने कि वो ताक पकड़ से आई ताक की बतला रही है कि इस घर में उजाला हो चुका है या रह चुका है। तो बच्चे, मेरे जवान बच्चे, उनके भी बच्चे बड़े बड़े, वो कहते हैं ताक क्या होती है। तो भाई उर्दू इसी तरीके से दूर हो रही है। हमारे बच्चे हमें
मायूस ना करे। बहरहाल उसमें एक है कि उर्दू का देखा जनाजा मैंने देखा जिस तरफ, हम क़िबला, हुजूर, मुकर्रम, मुअज़्ज़म इस तरह अलक़ाब से पहले अपने बुजुर्गों से बात करते थे, वरना क़िबला तो हम हर बात पे कहते थे क़िबला दुरुस्त, क़िबला कैसे मिजाज हैं आपके। तो ये दिमाग में रखिएगा, बहुत से बच्चे वहाँ पीछे बैठे हैं, कि उर्दू का देखा जनाजा मैंने देखा जिस तरफ, उर्दू का देखा जनाजा मैंने देखा जिस तरफ, उर्दू अपनी जा रही है क्या बताऊं किस तरफ, अब तो क़िबला कह के भी मैं बात कर सकता नहीं, जिसको भी क़िबला कहा कहने लगा है इस तरफ। उर्दू का थैंक्स, मैं दिल खुश हो रहा है कि आप लोग कैच कर रहे हो मिसरा, वरना तुर तारा तारा वाला मिला बहुत है, अभी गाँव में मैं सुनाना शुरू कर दूंगा। हाँ, वो इल्मियत के साथ ये महफिल आप लोगों की सबसे सोबर और सीरियस महफिल है अब तक मैंने जहाँ अटेंड किया है आज़माए का इस सीजन में। हाँ, बहुत अच्छा। और ये बहुत पाए के 4 शायर अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपने इसी तवज्जो से हमतन गोश होके शेर सुनने को मिलेगा, आपको शेरियत मिलेगी। हाँ, बहुत शुक्रिया। मैं जिसे कहना चाहिए फिर अदा कर रहा हूँ कि उर्दू का देखा जनाजा मैंने देखा जिस तरफ, उर्दू अपनी जा रही है क्या बताऊं किस तरफ, अब तो क़िबला कह के भी मैं बात कर सकता नहीं, जिसको भी क़िबला कहा कहने लगा है इस तरफ, जिसको भी क़िबला कहा कहने लगा है इस तरफ। एक और तवज्जो पे, जब ये कैच कर लिया है शायद इंशाल्लाह ये भी कैच कर लोगे। मेरा लास्ट टाइम में यहाँ था, शहीद भाई ने ही इस प्रोग्राम में बुलाया था, तो 2016-17 की बात है। उस वक्त मैं फिट था, अब मेरे दांत भी बहुत से जवाब दे चुके हैं और बाईपास मेरा हो चुका है। तो जब मैं 63 इयर्स का हुआ तो मेरा बाईपास हुआ, एक साथ पेन हुआ, डगला हुआ। उन्होंने कहा भाई अल्लाह ने बचाया, वाकई मौला की दात ने बचाया। तो वो बाईपास जब हुआ तो मुझे एक मुशायरे में रिजवान सिद्दीकी साहब निदामत कर रहे थे, कराची जिमखाना का मुशायरा था। मैंने कहा बाईपास हुआ है, उस पर कहता हुआ है बुढ़ापे में ये बाईपास हो जाता है अक्सर लोगों को। तो कहने लगे मेरा भी हुआ है। सामने सफ में 2 आदमियों ने कहा मेरा भी हुआ है, सब बुजुर्ग ही नजर आ रहे थे। तो उसको मैंने लिखा है कि बुजुर्गों को ये बाईपास क्यों हो जाता है, मुआवरा अगर किसी को हुआ है हाथ में खड़ा करना, फिर मुझसे लड़ने लगेगा। कि हमारी उर्दू में, हिंदी में जो जरा ज्यादा एडवांस लेडीज होती है ना, हम उन्हें बाई कहते हैं। हाँ, उर्दू में बाई के मतलब मैंने आपको बता दिए कि मुझको ये बताता है तजर्बा मियाँ मेरा, मुझको ये बताता है तजर्बा मियाँ मेरा, वो जो पहले खुश होले फिर उदास होता है, जिसके भी जवानी में बाई पास होती है, उसका ही बुढ़ापे में बाई पास होता है। बहुत दिल खुश हो रहा है। ये किताब मैंने बड़ी हिम्मत करके पढ़ा था, आपने कैच कर लिया, यकीनन बाई पास होती है। एक सच्चा आदमी हो, सच बोलने में कभी नहीं घबराता। हाँ, गलती से कभी सहवन झूठ आदतन हो जाए हंसी मजाक में तो और बात है, मगर कोशिश करता हूँ कि सच बोलूँ। और इस वक्त इस किताब में बिल्कुल ये भी अब सब ताज़ा सुना रहा हूँ, 2 किताब पढ़ के इजाज़त चाहूँगा, 2-3 बिल्कुल ताज़ा किताब है। एक तो खुशी हुई थी, मैंने सल्यूट किया था और अपने उसमें लिखा भी था। तो जब ये स्पेस में इंडिया के साइंसदान स्पेस में पहुंच गए थे, तो ये किसी की भी कामयाबी हो आपको खुश होना चाहिए, अल्लाह आपको भी कामयाबियां देगा। बहरहाल अभी इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन भी करना गलत बात है, तो उस पर एक किताब मैंने पेश कर रहा हूँ कि
इंडियन साथियों और पाकिस्तानी दोस्तों, अपने तक ये रखिएगा कि करके आया दौरा इंडो पाक का मैं हालिया, करके आया दौरा इंडो पाक का मैं हालिया, फर्क क्या दोनों मुमालिक में है मैंने पा लिया, दोनों ही मुल्कों को देखा टॉप पर है ये हुजूर, इस तरफ दीवानी देखी इस तरफ दीवालिया। मैं पेश कर रहा हूँ सरवत भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि नहीं क्या है, जो सच बोलो भाई, जो हाथ है। हाँ, करके आया दौरा इंडो पाक का मैं हालिया, फर्क क्या दोनों मुमालिक में है मैंने पा लिया, दोनों ही मुल्कों को देखा टॉप पर मैंने हुजूर, इस तरफ दीवाली देखी इस तरफ दीवालिया। और दो किताब पढ़ के इजाजत चाहूंगा कि शायद 3 शेर पढ़ दूं, ये कितना निकल आया अभी मैंने सेलेक्ट किया था। एक लफ्ज होता है मुस्कुराहट, टेक्निकल सारे किताब निकाल रहा हूँ, आप लोग तवज्जो से सुन रहे हो सिर्फ इसलिए। मीम सीन काफ रे अलिफ छोटी है टे, 7 हुरूफ हैं, इसकी तरतीब याद रखना और हुरूफ को दिमाग में रखना। मुस्कुराहट हंसने को कहते हैं, हाँ स्माइलिंग, के मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अब तक लड़कियां। हाँ खुश नहीं हर एक होती, मैं भी क्या हो गया, मैं भी खुश हो रहा हूँ, मुझे खुश नहीं होने दोगे। मुस्कुराकर देखती है, इसको मुस्कुराहट लफ्ज़ को दिमाग में रखिएगा। मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, चेहरे की पर इस सजावट में बनावट भी तो है, मुस्कुराहट पर किसी की कैसे मैं कर लूं यकीन, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। बहुत शुक्रिया। और बस 2 किताब पढ़ के इजाजत चाहूंगा। एक अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का दिल चाहता है तो ये किताब हो गया कि गैर मामूली शायरी, हुरूफ से कैलकुलेट करता हूँ, अभी तक हुरूफ को कैलकुलेट करके एडजस्ट करने वाला कोई दूसरा शायर अल्लाह करे आए तो हमें भी लुत्फ आएगा, इसलिए अपनी शायरी को गैर मामूली शायरी कहता हूँ। और वो मैंने 4 मिसरों में बयान किया है कि यूं नहीं मुझ में अकड़ शेखी तकब्बुर और गुरूर, यूं नहीं मुझ में अकड़ शेखी तकब्बुर और गुरूर, ये तो बस झूठी अना के ही सुतूं है जाहिरी। यूं नहीं मुझ में अकड़ शेखी तकब्बुर और गुरूर, ये तो बस झूठी अना के ही सुतूं है जाहिरी, गैर से भी बन के मामूली मैं मिलता हूँ हुजूर, गैर से भी बन के मामूली मैं मिलता हूँ हुजूर, इसलिए तो गैर मामूली है मेरी शायरी, इसलिए गैर मामूली है मेरी शायरी। और आखिरी किताब पढ़ के इजाजत चाहूंगा इस तमहीद के साथ कि मौला की जात ने 2 बेटे दिए। मैंने 6-7 आपको सब तादा सुना दिए, शायद एक बार पहले भी सुना चुका हूँ यहाँ या कहीं और, कि मौला की जात ने 2 बेटे दिए। तो जब बड़े बेटे, अब तो उनके भी बच्चे बड़े बड़े हो गए, जब बड़े बेटे की शादी होने लगी तो वो मेरी डायरी खपोड़ता रहता था। तो उसने कहा बाबा आपने अपनी शायरी पे इतना कुछ लिखा, मेरी शायरी पे भी, मेरी शादी पे भी कुछ लिख दें। तो ये मेरी बयान में आज तक पहला और आखिरी झूठा किता है जो पेश कर रहा हूँ। हाँ पहले क्लैरिफाई कर दूँ, वरना कहोगे कि ये चेहरा इतना मुहज़्ज़ब बना के कैसा निकला। तो ये आप लोगों को हंसता देखने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है कि बेटे का रिश्ता, मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ, खुश आया हूँ,
मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ मुरत्तब करके यारो, एक नई उदाद आया हूँ। मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना, सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। हैदर हसनैन जलीसी साहब को आपने सुना।